Yeah, good morning students. Again coming back to the article writing. In the last time you had seen about the, I had explained few things about the article writing. That was format, topics, marking scheme also I had explained. What is an article, definition of an article, that it is an logically and coherently written meaningful paragraph. Then I had mentioned about few points that you should remember while writing an article and how to set the paragraphs. That is a very important thing, because the examiner who is going to read that article would see the setting of your particular paragraphs, what is the idea being given in a paragraph, and always remember the last paragraph is only for the conclusion, that what you conclude from that thing. Okay, then this was a point to remember. Marking scheme I told you. Title should be very catchy, and title carries a marks and it should be very catchy, because title attracts the reader first. It is the thing that is read by the reader in the initial period, and when he reads that, he may find it interesting and he may go on reading the whole para, because if title is not catchy, then he will not be attracted towards reading further, and he may just dump that article into a dustbin. Okay, so don't go for that. Give a very catchy title, and the reader should be aware with that just a title that what he is going to read. Then content, organization, expression over introduce न्यू पॉइंट. हमेशा नया जो पॉइंट होता है नया पैराग्राफ से स्टार्ट होता है, और सभी जो पॉइंट्स होते हैं सिमिलर पॉइंट्स शुड बी बंडल्ड अप इन अ सिंगल पैरा. ओके, कोशिश करो कि लॉन्ग पैरा नहीं बनाओ, शॉर्ट सेंटेंस बनाओ, ताकि मिस्टेक्स कम होंगे. जितने शॉर्ट सेंटेंस होते हैं उतने मिस्टेक्स कम होते हैं, एंड इसीलिए ये कहा जाता है कि जितने शॉर्ट सेंटेंस बनाओगे उतना बेटर है. एंड पैराग्राफ भी कोई बड़े लंबे चौड़े नहीं बनाओ. हो सकता है कि अगर 3 पैराग्राफ में आप नहीं कर पा रहे हैं, देन यू मे गो फॉर 4 पैरा, बट दे शुड बी शॉर्ट. ओके, देन marks will be title. I told you marks are avoided for this, and grammar and the spelling mistakes should be avoided, because you are class 12 students and it is not expected from you to make a grammatical error or a spelling mistakes. Okay, then this was the format. हेडिंग, टाइटल, लाइन्स, राइटर्स नेम, बॉडी. सी राइटर्स नेम में मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ जो बुक्स हैं दे आर प्रिस्क्राइबिंग दैट बाई लाइन में, चलिए ऊपर टाइटल आता है, टाइटल के नीचे ही जस्ट लाइन में बाई लाइन में वो राइटर का नाम बोलते हैं, बट दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द CBSE. वो जो फॉर्मेट है दैट इज़ बेस्ड ऑन द रिपोर्ट राइटिंग में हमेशा बाई लाइन आती है, नॉट इन दिस. सो अवॉइड दिस. और आर्टिकल आप चाहो तो आपका नाम ऊपर लिख सकते हो, या बेटर है नीचे के नीचे लिख दो. ओके, कंक्लूजन एंड एंडिंग ऑफ द पैराग्राफ विथ एन ओपिनियन, रिकमेंडेशन, कुछ भी हो सकता है. मैंने कहा था लास्ट पैराग्राफ हमेशा इट इज़ कंक्लूडिंग पैराग्राफ. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप्स फॉर आर्टिकल. दिस वाज आल्सो डन. टारगेट ऑडियंस कौन है, किसको आप वो आर्टिकल लिख रहे हो, एंड वो आर्टिकल कौन पढ़ने वाला है, ये आपके टारगेट ऑडियंस. उसी हिसाब से आपको पूरा आर्टिकल यू शुड राइट फोकसिंग ऑन द ऑडियंस हु आर गोइंग टू रीड दैट आर्टिकल. ओके, अगर बच्चों के आर्टिकल में यू आर राइटिंग द बिग वर्ड्स, बिग sentences, making too many long sentences, the children will not be attracted. चिल्ड्रंस का जो आर्टिकल होता है उसमें दे नीड द क्यूरियोसिटी, दे नीड द सम फन आल्सो, दे नीड द डायरेक्ट लिंक विद द ऑथर आल्सो. सो तो ये जो फनी जैसा होता है कुछ आर्टिकल्स, तो ये एक्चुअली में वैसे लिखा जाता है.
सो टारगेट ऑडियंस पर्पस क्या है, कलेक्ट एंड सिलेक्ट ऑर्गेनाइज। ओके, नाउ इसके लिए मैंने आपको कही है ग्रामर, स्पेलिंग, पंचुएशन, वोकैबुलरी। वोकैबुलरी स्किल यू शुड इम्प्रूव। Nowadays you are free little bit, not too much, but little bit you are free, and so you should try to increase your vocabulary. You should read magazines, you should read good books. They are available online also, and if you can read online also, and you should, but I normally prefer to have a book in my hand, so that I want to feel those words. So it is most preferred to have the book in a hand and read, and whenever you have a time you should go for a book reading. Okay, it will develop your vocabulary. Besides this, you will be able to write good sentences. Okay, then keep the introduction of the topic catchy. I told you the जो इनिशियली आपका जो हेडिंग है वो भी कैची होना चाहिए, इनिशियल लाइन कैची होनी चाहिए। ओके, एंड डिस्कस द ओपिनियन, द मैटर, ऑर्गेनाइज। नाउ मूविंग, नाउ द कॉमन मिस्टेक्स in the article writing format. First, not using the facts or quotes or similar cases. You should give the quotes कि particular person like Mahatma Gandhi told that friendship या enemy जिसके भी बारे में उन्होंने कहा है, तो उस बारे में आप वो particular जो भी उन्होंने कहा है you should use the quotes. ओके, ये quotes जो होते हैं, this shows that you are having a reading habits and you are influenced by these great persons. तो यहाँ पे अगर जो लॉजिकल कोट्स, ऐसा नहीं कि इलॉजिकल कोट्स को आप यहाँ पे लगा दो, नहीं, लॉजिकल कोट्स जो होंगे यू शुड हैव फ्यू कोट्स ऑफ द जनरल टॉपिक्स, और इस तरीके से आपको वो कोट्स को यहाँ पे लगाना है। ओके, द लैंग्वेज शुड नॉट बी टू फॉर्मल. The article must be in easy language and better understanding. See, attractive language होनी चाहिए, simple होनी चाहिए, not too many words, foreign words should be used. It should be simple so that your audience are able to understand and they can form a link with that article themselves. Then only they will be reading that article. Okay, then moving, the title of the article must be catchy. I told you ये mistakes common होता है कि ये नहीं करते वो लोग. No use of paragraph. Paragraphs use is a must. If paragraph is not there, paragraphing is not there, then you will be getting a minus marking. Okay, paragraph is a must. हमेशा 3 पैराग्राफ मिनिमम में डिवाइड करना है. तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन, देन द बॉडी एंड देन द कंक्लूजन. इट में गो, अगर आपका लगता है कि बॉडी थोड़ी बड़ी हो रही है उसको 2 में डिवाइड कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, बट पैराग्राफिंग शुड बी देयर. विदाउट पैराग्राफिंग इट इज अ ब्लंडर फॉर अ आर्टिकल राइटर. ओके, हर एक में बोल रहा हूँ, राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग में भी पैराग्राफ करोगे एंड इन आर्टिकल राइटिंग आल्सो यू शुड मेक द पैराग्राफ. हमेशा ये ध्यान रखना. ओके, expressing personal views in fine, but authors must never talk about himself. ये भी एक है कि आप आपकी राय मत रखो, वो कंक्लूजन में थोड़ा सा आएगा, बट नॉट इन द होल आर्टिकल. होल आर्टिकल में आप अपनी राय नहीं रखोगे, बट लास्ट कंक्लूजन में थोड़ा आ सकता है. आप कोट्स यूज़ करो कि लाइक सो द ग्रेट पर्सन हैव टोल्ड, एंड यू कैन यूज़ दोज कोट्स. Points to keep in mind for the article writing. Topic should be unique and relevant. The article has to get attention. I told you attention. अगर attention मिलेगा तभी वो आर्टिकल को पढ़ेंगे, बाकी आर्टिकल को नहीं पढ़ने वाले हैं. Okay? It has to be interesting. It has to be easy to read. Easy language. I told you just now in the earlier slide we had seen that article writing should be in an easy language. The reader is identified. Find, जैसे हमने हमारे जो टारगेट ऑडियंस है उनको आइडेंटिफाई किया. Find the main goal of writing an article.
क्या पर्पज़ है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ राइटिंग दैट आर्टिकल, ये आपको पता होना चाहिए। द गोल कैन बी एनीथिंग फ्रॉम प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट एंड एडवाइस और कंपेयरिंग। ओके, गोल कुछ भी हो सकता है, हम लोग हो सकता है कि शायद सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कर रहे हों, या फिर हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हों, या एडवाइस, या ऐसा कुछ भी जो कंपेयर है। तो यहाँ पे द गोल शुड बी, you should know the goal. Then the title must be eye catching, clear and interesting. Again and again I am repeating this thing, the title must be catchy, the title must be catchy. अगर टाइटल कैची होगा तो you can get a good mark also. आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल रहा हूँ कि फ्रॉम बोर्ड एग्जाम टाइटल देख के ही एग्जामिनर इज इम्प्रेस्ड, कि एग्जामिनर को लगता है हाँ वाकई में एग्जैक्ट टाइटल लिखा, जो आप उनके पास 5-6 सिलेक्टेड टाइटल्स होते हैं कि हाँ उन्होंने ये क्वेश्चन दिया, इसका सूटेबल टाइटल ये होंगे, 5-6 टाइटल। अगर उन 5-6 में से क्लिक हो जाता है वेल एंड गुड, अदरवाइज यू विल गेट अ लिटिल लेसर मार्क्स अगर कैची होता है तो। इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टार्टिंग पैराग्राफ मस्ट बी हाईली अटेंटिव, यानी आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये ऐसा होना चाहिए कि एकदम से रीडर का अट्रैक्शन पूरा वो कहीं डेविएट नहीं हो, और ही इज़ फोकस्ड ऑन दैट आर्टिकल कि नहीं मैं और पढ़ूंगा, वाह बहुत अच्छा लिखा। तो ये जो चीज़ होती है ये वाकई में आर्टिकल राइटिंग का फर्स्ट पैराग्राफ में आपको पता चल जाएगा कि हाँ बहुत अच्छा लिखा है। यूज़ योर वोकैबुलरी स्किल और ट्राई टू यूज़ सम इंट्रोगेटिव वर्ड्स फ्रॉम फॉर द स्टार्ट। कुछ वोकैबुलरी यूज़ करो, वोकैबुलरी तो मस्ट और बगैर उसके नहीं चलने वाला है। ओके, देन जस्ट आई थिंक एक पीछे करो, जस्ट होल्ड ऑन। या यूज क्लियर स्टेटमेंट्स। ओके, यूज क्लियर स्टेटमेंट एंड मेक असर्शन, अवॉइड रिपीटिशन। हर एक बात को, कई बच्चों को ये लगता है कि एग्जामिनर कौन सा पढ़ने वाला है, और हम तो एक ही चीज़ को इस पैराग्राफ में भी लिख दिया, इसमें भी लिख दिया, इसमें भी लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया, ऊपर भी इस पैराग्राफ की स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों सेम कर दी। बट नहीं, एग्जामिनर पढ़ता है, ईच एंड एवरी लाइन इज बीन रेड बाय द एग्जामिनर। ओके, डोंट अंडर एस्टिमेट हिम। वो हर एक लाइन को पढ़ता है, हर एक वर्ड को पढ़ता है और मार्क भी करता है कि ये गलत है। बाकी हम ग्रामेटिकल एरर कहाँ से पकड़ेगा। ओके, देन यूज द स्टाइल ऑफ पैराग्राफ राइटिंग एंड राइट द कंटेंट यूनिकली एंड अनएम्बिगुअसली। ओके, मैंने पहले भी कहा कि जो पैराग्राफ राइटिंग है वो इज़ अ मस्ट। हर एक आइडिया को ईच पैराग्राफ में डिवाइड करो, पैराग्राफ राइटिंग का मार्क्स मिलते हैं आपको। ओके, देन अवॉइड यूजिंग द पॉइंट्स विच इंटरेस्ट यू ओनली एंड नॉट फॉर द जनरल पब्लिक। और ऐसा कोई आप खुद की ओपिनियन नहीं रखना है, एज ए जनरल पब्लिक आपको डील करना है। यानी इसके जस्ट पहले स्लाइड में कि ऑथर को अपने पर्सनल व्यूज़ आर नॉट, वो लिख सकता है लास्ट में एक आधी लाइन में, बट कि आई थिंक सो एंड आई माई व्यूज़ इज़ दैट, बट नॉट एवरीवेयर। और जनरल पब्लिक को क्या सोचती है उस बारे में आपको लिखना है। राइट ए गुड एंड लॉजिकल एंडिंग, यानी आपको गुड एंड लॉजिकल एंडिंग लिखनी है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, मार्किंग स्कीम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द स्टूडेंट्स। हेडिंग राइटिंग, कंटेंट 1 मार्क्स, कंटेंट का 4 मार्क्स आ जाएगा, और ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, अप्रोप्रिएट वर्ड्स, स्पेलिंग्स, कोहेरेंस, रिलेवेंस ऑफ आइडिया, ये आ जाएगा 5 मार्क्स। अब ये 5 मार्क्स कैसे 2.5 और 2.5 डिवाइड है। ओके, इसके 2.5 नंबर, इसके 2.5 नंबर। तो आप देख रहे हो हेडिंग एंड राइटर्स नेम अगर आपने सही जगह पे लिखा है तो यू विल बी गेटिंग 1 मार्क्स। कंटेंट जो है
पूरा ओवरऑल कंटेंट, उसके आपको 4 नियम है। अगर ग्रामेटिकल एरर, यू आर नॉट परफॉर्मिंग एनी ग्रामेटिकल एरर, इफ़ यू आर नॉट परफॉर्मिंग एनी ग्रामेटिकल एरर एंड यू आर यूजिंग अप्रोप्रिएट स्पेलिंग, तो यहाँ पे ये आराम से मिल जाते हैं 2.5 नंबर, 2.5, एंड अनदर 2.5 इज आल्सो अवेलेबल फॉर यू। ओके, this one is also available if your ideas are relevant with the whatever the question is. Okay, now moving to the next tips to attempt the question. जब भी आपको क्वेश्चन मिले, whenever you get a question to about the article writing, तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले ये आपको सिर्फ 5 मिनट में करना है, just 5 minutes. Okay, plan before your pen. It is important that you follow a sequence. Jot down the कहीं भी पे रफ जो पेज